गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद कपिल सर। शिक्षा विद कपिल सर में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक विच आई हैव टेकन फॉर यू टुडे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ, एंड दैट इज कम्युनिकेशन, और हाउ टू बी अ गुड एंड कमांडिंग कम्युनिकेटर you can become. First of all, we'll talk about one thing, that what communication is. Communication actually में है क्या? Communication is nothing else transferring message from one person to another person or from one place to another place. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर कोई मैसेज दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन. ओके, सो क्या कम्युनिकेशन सिर्फ वॉइस के द्वारा हो सकता है? आई मीन, कैन दिस बी डन ओनली बाय द वॉइस? इफ इन केस, आई गिव यू एग्जांपल, इफ इन केस आई एम डेफ एंड डम्ब बाय बर्थ, सो कैन आई कम्युनिकेट? Yes, I will do communication, because this time, if in case I don't have any voices, then I'll do it by my body, by my hands, by my facial expressions, and this and that. I'll use all my body to communicate. Even then I'll communicate. So communication means passing on the message from one person to another person, or from one place to another place. That is called a communication. Now the question arises, guys, कि why do we need communication? हमें communication चाहिए क्यों होती है? इसकी ज़रूरत क्या है? Nowadays, you must have seen a lot of people around you who have achieved a lot of things in their lives. हमें लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं. हमें लगता है कि you must have seen a lot of people around you as well, कि इनके पास neither they have any degrees nor they have any experiences and this and that, blah 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 blah. But I can guarantee you they have one thing, that is a good commanding communications. So this is how important the communication can be sometimes. This thing can take you from here to here. ठीक है, so you can achieve lot of things if in case you have good commanding communication power. You can achieve lot of things in your life. Okay, so today, guys, I'll help you on this, how to be a good communicator and how to achieve a good communication skills. So in this area, I'll give you few tips, so that after applying all those kind of tips, you can be a good communicator by yourself. Tip number 1, your body language. Guys, now you will say that body language, because at the moment मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ communication की, अभी मैं आ गया हूँ body language के ऊपर, ठीक है. लेकिन believe you me, body language is an integral part of good communications. ठीक है, if in case you have a prompt, very good strong body language, you can be a good communicator. I'll give you example. मैं आपका example लूँगा इसके लिए. Let us suppose that you are HR of some big brand company. आप IBM या HDFC या कोई भी जो big brand companies हैं, उनके आप HR हैं. Okay, and you're sitting in your room and you have to take you have to take interviews of people. Okay, suddenly you see a person comes inside. ठीक है, आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अंदर आ रहा है, who has a very prompt and very strong body language. ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने आपको बोला कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, यू मस्ट बी टायर्ड बाय नाउ, दिस एंड दैट. तो आपको क्या फील होगा उसके बारे में? ऑब्वियसली यू लाइक हिम. आप बोलेंगे यार कमाल है, बहुत ही इसकी लैंग्वेज है. देखिए, आप जो कम्युनिकेशन पावर है उसकी, वो बाद में आने वाली है. जब आप इंटरव्यू करेंगे उसको, वो बताएगा अपने बारे में, इंट्रोडक्शन देगा अपना, दिस एंड दैट, जो भी बोलेगा वो. लेकिन इनिशियल जो एक्सपीरियंस, जो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आया उसका, वो आया उसके बॉडी लैंग्वेज का. हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़, ठीक है ना. इसके ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसने जेस्चर कैसे दिए बॉडी का आपको, उसने कैसे नॉट किया हेड को, कैसे सर हिलाया उसने, हाउ इज़ ही यूजिंग हिज हैंड वाइल कम्युनिकेटिंग विद यू. ठीक है ना. सो all those things do matter. Okay, so good body language, if in case you have, add on if in case you have good comm skills as well, this will be doing as a icing on a cake. ये बहुत अच्छी होती है. तो आपके जो communications हैं वो आपके body language का join करती हैं, which is confident already, so you will make a very very good pair. Okay, and I just want to add one more thing with this body language only, that while communicating, जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं, you have to indulge your body into it. आपको अपनी बॉडी को उसमें indulge करना होता है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर. इससे दिखता है कि हाउ रिलैक्स्ड यू आर, बिकॉज व्हेन वी आर नर्वस, जब हम नर्वस होते हैं, सो ये आवर बॉडी टेंड्स टू स्टिफ. हमारी जो बॉडी होती है वो स्टिफ हो जाती है ऐसे, या फिर जेब में हाथ डालना. ऑल दो जेस्चर आर वेरी बैड, कंसिडर्ड लाइक द पर्सन डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ. ओके, if in case you are using all your body with the communication, like you have using your hand the way I am doing right now, because I am relaxed from here, I am not nervous, so I am using my hands, I am using my body, with my eyes, my nose, I am using every part of my body.
That means that I'm not stiff, because stiffness shows the nervousness. Okay, so always indulge your body with the communication. That will give a very good pair. ओके, टिप नंबर 2, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टिप थाउजेंड, आपने हज़ारों बार इस टिप के बारे में सुना भी होगा बहुत लोगों से कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन ये टिप इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है ना। वो टिप है नंबर 2, दैट इज़ वॉच इंग्लिश मूवीज़ एंड लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स। अब इसको बहुत लोग कहते हैं, इसके टीचर्स आपको, कि भाई ऐसा कीजिए, आप ऐसा कहते क्यों हैं। देखिए, जो नई लैंग्वेज होती है हमारी लाइफ में जो आती है, जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, English is not our native language. This is the second language which we are learning now. I learned afterwards, you are learning now. So हम कुछ समय के बाद उसको याद करते हैं, ठीक है। तो जो नई लैंग्वेज होती है उसके साथ आपकी बॉडी का सिंक होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एक सिंक होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के साथ उस नई लैंग्वेज का। I'll give you example of this. If in case I take you someday to swimming pool एंड ऑन द फर्स्ट डे मैं आपको कहता हूँ कि आपने 1 मिनट के अंदर इसमें पूल में जंप मारना है, क्या आप मार देंगे? आपका माइंड आपको बोलेगा प्लीज़ डू नॉट जंप एंड गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आपको माइंड को पता है कि कुछ नई चीज़ है ये मेरे सामने, क्योंकि तो माइंड नोज एवरीथिंग, माइंड इज़ वेरी कॉन्शियस, ऑलवेज कॉन्शियस, और हमेशा एक्टिव रहता है। वो बॉडी को कमांड करता है, वो बोलेगा कि भाई ये चीज़ आपको नहीं आती है, गेट आउट ऑफ दिस। अगर उसी एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं 15वें दिन आपको लगातार स्विमिंग लेके जाता रहूँ या आप जाते रहें अपने आप, तो 15th डे आपका माइंड क्या बोलेगा आपसे कि अब जो है स्विमिंग आती है, जंप इनटू द पूल। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द बॉडी एज वेल। इफ आवर बॉडी इज नॉट सिंक्रोनाइज विद समथिंग, अगर वो तालमेल किसी चीज़ के अंदर बॉडी का नहीं, तो बॉडी उसके लिए मना करती है। इसलिए बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर whenever we come across with someone who is very fluent, so we get nervous। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपका सिंक्रोनाइज नहीं किया, आपका सिंक नहीं बना हुआ बॉडी में उस लैंग्वेज के अंदर। एंड दैट इज़ फॉर एवरी लैंग्वेज। इफ इन केस टुमारो आई वांट टू लर्न मराठी और तेलुगु और वट एवर लैंग्वेज आई जस्ट वांट टू लर्न, मुझे उसका सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका सिनेमा देखूंगा, उसकी जो लैंग्वेज मेरे दिमाग में आती रहेगी, मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहेगी। तो टाइम कुछ वक्त के बाद जो मेरी बॉडी है, ही फील्स ओके विद दैट न्यू थिंग विच इज़ लैंग्वेज। Okay, so that is very very important. Tip number 3, that is the body language we are talking about. Again, I just want to add one more thing to body language, that if you have a good commanding body language, this will help you in lot of you must have seen a lot of big bosses and this and that. The common thing they have, that they all are confident, they all are confident with their body languages. Okay, tip number 3, प्रैक्टिस एट होम। ये भी काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने कि प्रैक्टिस करो, बट कैसे करो। दिस इज स्पेशली फॉर बिगिनर्स कि प्रैक्टिस हमें करनी है, बट करनी कैसे है प्रैक्टिस हमें, वी डोंट नो। स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस, जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ स्टार्ट कीजिए। जैसे कैन आई सिट हेयर, कैन आई गो देयर, कैन आई हैव फूड टू ईट, आई एम ईटिंग माई फूड, I am going somewhere. Okay, start with small sentences. The moment you start with small sentences, इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो फ़ायदा यही है कि हमारी जो बॉडी है वो सिंक करती है, एक तालमेल बिठाती है उस नई लैंग्वेज के साथ साथ, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है इसके लिए है कि आपका जो माइंड जो है वो कंफर्टेबल हो रहा है लैंग्वेज के साथ, और जो आपका टंग है वो भी कंफर्टेबल हो रहा है लैंग्वेज के साथ। देखिए बच्चों, हर एक लैंग्वेज का एक अलग से ट्विस्ट ऑफ टंग होता है, ठीक है ना। हिंदी के लिए जो हमारी जो टंग है हमारी, वो अलग तरीके से मूव करेगी, इंग्लिश के लिए कुछ अलग तरीके से और मराठी के लिए कुछ अलग तरीके से। तो इंग्लिश का भी जो होता है वो एक अलग ट्विस्ट ऑफ टंग होता है वर्ड्स को बोलने के लिए। इफ़ इन केस वी डू नॉट प्रैक्टिस, व्हेन वी डोंट प्रैक्टिस वी टेंड टू फंबल अराउंड, है ना, बहुत फंबल करते हैं हम उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ ना हो, तो स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेज, do not go for long sentences, because if in case you go for long sentences, then lot of grammatical things you have to include. कंजंक्शंस आते हैं, इंटरजेक्शंस आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। सो डोंट डू दिस। ओके, सो एट होम स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस ओनली। ओके, टिप नंबर 4, this is again a very very important tip for you, that tip number 4, which is that explore your group। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास आते हैं, जो बोलते हैं सर व्हेन वी आर टॉकिंग विद समवन whom
आई नो इन माई लाइफ, लाइक माई पेरेंट्स हैं मेरे या फ्रेंड्स हैं क्लोज, हम जब उनसे बातें करते हैं देन वी आर फीलिंग ओके, देन वी फील फाइन एंड वी कैन कम्युनिकेट. द मोमेंट वी टॉक विद समवन एल्स whom वी डोंट नो, तब हम नर्वस होते हैं. ये ऐसा होता क्यों? देखिए बच्चों, नर्वसनेस जो होती है क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग जज्ड बाय पीपल. कि आपको डर होता है इस चीज़ का कि आपको कोई जज करने वाला बाद में वहाँ पे. ठीक है, जो क्लोज ग्रुप में वो डर नहीं होता. आपको पता था कि उनको पता है हमारे पास दीज आर पीपल हु नो, दे नो अबाउट मी, ठीक है, हाउ गुड हाउ बैड वी आर और आई एम. सो बट जैसे ही उस ग्रुप से बाहर निकलते देन यू गेट स्केयर्ड बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग जज्ड. लेकिन उसकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी. ठीक है, उस जो आपका जो ग्रुप है उससे बाहर भी निकल के आपको थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी. लॉट ऑफ पीपल डू वन थिंग, द मोमेंट दे गो टू वॉच मूवीज, दे टेंड टू टॉक विद देम in restaurants or in customer care. Sometimes a few people try for customer care. So always try and explore your group and try to speak with people who are out of that close group of you. That is really important. Okay. Tip number 5 and last tip, that is read more. Now you will say that I'm talking about the communication and now I'm saying the reading. See, language is one thing, but communication is an art. Okay, language is only one tool of good communication. वो सब कुछ नहीं. I'll give you example. If in case I can speak Hindi, okay, and you must have heard one name, Kumar Vishwas. He knows Hindi. So I know Hindi, he knows Hindi. So can I communicate in Hindi better than him? No, obviously, because here उनके पास बहुत चीज़ें यहाँ पे स्टोर्ड हैं. ठीक है, इसलिए जो है वो मुझसे अच्छे वक्ता हैं. तो इफ़ इन केस यू हैव ए लैंग्वेज पावर बट इफ़ इन केस यू डोंट नो how to communicate, if in case you don't have things here stored, you will not be able to communicate. Okay, so read more. When you read more, when you have more information here stored, then you will be able to pour all those information when it is they are required. Okay, so read more. And second thing is very important in reading, that you learn the formation of sentences. सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया गया है, किस तरीके से उसमें यहाँ आपके जो पढ़ने की स्पीड बढ़ती रहती है आपकी. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज सून. एक सेंटेंस को समझने में इनिशियली यू माइट टेक 10 seconds, then the time will cut down to 7 seconds, and then 5, then 4, then 3, and the stage will come that you don't require any time to understand the sentence. ओके, तो वो स्पीड जो है वो अगेन उस चीज़ को आपको, यू शुड हैव मटेरियल टू स्पीक इफ इन केस यू वांट टू बी गुड कम्युनिकेटर. So guys, these are my 5 tips which I'm sure that this will help. These tips will help you in your future, and soon you can become a good communicator. This is what I want from my side. And if in case you like this video, guys, please subscribe my channel. Link is given below, and please share it. And if in case you can, and please like the videos. And I'll come back with my new video soon. Till then, thank you so much. Bye.